సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. మరొకసారి అందరికీ జై భీములు. నా పేరు సృజన్. నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ని. కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు హర్యానా నుంచి వచ్చారు. కర్ణశీల్ రాహుల్ పంతేజ్ గారిని నేను ఢిల్లీ టూర్లో కలవడం జరిగింది. దమ్మభూమికి వెళ్ళి వారిని పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది. కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ, మాన్యవార్జీ కాంశీరాంజీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ కొన్ని కార్యక్రమాల్లో బుద్ధిజంలో పాలు పంచుకొని తర్వాత చివర తీసుకొని ఉన్న సందర్భంలో మాన్యులు కాంశీరామ్ గారు చనిపోయిన తర్వాత కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు అప్పటికి బాంసెఫ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో వారు పనిచేస్తున్న క్రమంలో బుద్ధిజాన్ని వీళ్ళు ఫాలో అవుతూ చివర వేసుకున్న సమయంలో మాన్యులు కాంశీరామ్ గారు మహాపరినిబ్బ చెందడం జరిగింది. సో ఆ కార్యక్రమాన్ని వీళ్ళు దగ్గరుండి కార్యక్రమం పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇక కాంశీరామ్ గారి మరణానంతరం ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చివరలో ఉన్నా కాబట్టి తప్పకుండా బుద్ధిజాన్నే ముందుకు తీసుకుపోవాలి అన్న ఒక దృఢ సంకల్పంతో, ఒక నిశ్చయమైనటువంటి ఆలోచన ముందుకు తీసుకొని కాంశీరామ్ సార్కున్న డైనమిజాన్ని బుద్ధిజంలో ప్రదర్శించడం కోసం పంతేజ్ గారు అంబేద్కరైట్ బుద్ధిజాన్ని స్వీకరించి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చివర తీయకుండా ఇంకా పర్మనెంట్గా కుటుంబాన్ని కూడా వదిలేసి ఈ బుద్ధిజానికి అంకితమయ్యి దమ్మ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. హర్యానాలో ఒక దమ్మభూమి సెంటర్ని, బుద్ధిస్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ని వాళ్ళు అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. అక్కడ ఒక బుద్ధిస్ట్ మ్యూజియం ఉంటుంది. అట్లనే మాన్యులు కాంశీరామ్ గారికి సంబంధించినటువంటి మ్యూజియం కూడా ఓపెన్ చేసిండ్రు. మేము విజిట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు విఆర్ఎస్ ఇచ్చిన తర్వాత మొత్తం తన ఆస్తులన్నింటినీ కూడా విహారకే ధ్యానం ఇచ్చేసి తన కుటుంబాన్ని కూడా విహారాగా మార్చేసి తర్వాత బుద్ధిజాన్ని ఒక కొత్త పుంతలు తొక్కించనని నేను అనుకున్నా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడతారు. అంటే మనం ఒక మాంకాయ ఉండి బిజినెస్ మాట్లాడడం ఏంటని అనుకుంటాం, కానీ కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు పాలిటిక్స్ మాట్లాడతారు. కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు క్యాడర్ క్యాంపులు ఇస్తూ ఉంటారు. సో దమ్మ ఉపదేశాన్ని ఎన్ని మీన్స్లో చెప్పగలుగుతామో అన్ని మీన్స్ని వాడి ఎన్ని దారుల్లో మనం ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతామో దమ్మాని అన్ని కోణాల్లో కూడా దమ్మాని ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కర్ణశీల్ పంతేజ్ రాహుల్ గారు. సో వారిని కలిసినప్పుడు నేను నిజంగా చాలా గొప్పగా ఆనందానికి లోనైనా. దమ్మభూమి వెళ్ళిన తర్వాత విహారం చూసిన తర్వాత మనకు నాగలోక్లో ఏదైతే వాకింగ్ బుద్ధ ఉంటాడో అటువంటి ఒక పెద్ద విగ్రహం, అంటే నిరంతరం మనందరం సిట్టింగ్ బుద్ధాన్ని చూస్తుంటాం. బుద్ధుడు అంటే ఒక రావి చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అనే ఒక ఇమేజ్ మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ తథాగత గౌతమ బుద్ధుడు ఈ దేశం మొత్తం కూడా ఆయన కాలినడకన తిరిగి దమ్మాన్ని ప్రచారం చేసిండు. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఆగలేదు. కేవలం ఒక వర్షాకాల సమావేశాల్లో మాత్రమే బుద్ధుడు విహారాలలో ఉండేవాడు. మిగతా అంతా కూడా గ్రామాల నుంచి గ్రామాలకు అన్ని చోట్లకు తిరిగి దమ్మ ఉపదేశం ఇచ్చేవారు. సో అట్లా కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు కూడా నిరంతరం తిరుగుతూ ఈ దేశంలో అన్ని చోట్లకు వెళ్తూ అటువంటి అంటే తప్పకుండా ప్రతి మాంక్ అందరు కూడా విహారాలకు ఉండిపోకుండా అందరు కూడా అట్లే చేస్తుంటారు. కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు కూడా అట్లనే చేస్తూ దేశమంతా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక డైనమిక్ మాంక్ లాగా నాకు అనిపించింది ఆయన. ఎందుకనంటే మాన్యులు కాంశీరామ్ గారి ఒక మ్యూజియాన్ని వారు నెలకొల్పినారు. మనందరికీ తెలుసు మాన్యులు కాంశీరామ్ గారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అడుగుజాడల్లో, అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అక్టోబర్ 14, 1956లో 6 లక్షల మందితోని నాగపూర్లో దీక్ష తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాన్ని 50 సంవత్సరాలు మనకు 2006లో జరిగింది. 2006వ సంవత్సరంలో 50 లక్షల మందితోని కాంశీరామ్ గారు బౌద్ధంలోకి మారాలనుకొని అడుగులు వేసినటువంటి సందర్భం. అంతేకాకుండా ఉత్తరప్రదేశ్లో మీరు చూస్తే గౌతమ్ బుద్ధ యూనివర్సిటీ, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్, అంటే ఇట్లా బుద్ధిజానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలను మనం కాంశీరామ్ గారి లోపల చూడగలుగుతాం. అటువంటి ఒక డైనమిక్ బుద్ధిజాన్ని కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారి దగ్గర చూడడం జరిగింది. కాంశీరామ్ సార్ వాడినటువంటి సైకిల్, అటువంటి అనేక విషయాలు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే కాంశీరామ్ సార్ వాడిన సైకిల్ కానీ కొన్ని మ్యూజియం లాగా వాళ్ళు పెట్టి, అంటే బుద్ధిజాన్ని నేను ఒక కొత్త కోణంలో చూడడం జరిగింది అక్కడ. సో కర్ణశీల్ పంతేజ్ గారు కేవలం ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్గా అని అంటే మనము ఊహించుకునేటువంటి మాంక్ కాదు ఆయన. మన ఊహలకు అందనటువంటి ఒక డైనమిక్ మాంక్గా నాకు కనిపించడం జరిగింది.
సో ఇది నేను కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినా అని అనిపిస్తుంది, కానీ ఆయన గురించి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందని నేను అనుకున్నా. సో నాకు ఈ ప్రోగ్రాంకి ఉన్న సంబంధం కూడా కేవలం కర్ణశీల్ బంతేజ్ గారి ద్వారా, ఆయన శిష్యురాలైనటువంటి మేడం గారు ఉన్నారు, వాళ్ళ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామం ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాంకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా కేవలం ఒక వారం రోజుల పరిచయమే తప్ప అంతకంటే మనకు ఉన్న పరిచయం ఒకటి బౌద్ధధమ్మ. సో ఈ కార్యక్రమానికి మీరు వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ కర్ణశీల్ బంతేజ్ గారిని ఉపదేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. జై హింద్. महाकारुणिक बुद्ध को नमन करते हुए परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, यद्यपि सभी आप लोग तेलुगु बोलने वाले हैं और मैं हिंदी बोलने वाला हूं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाद में ट्रांसलेट शायद करेंगे। मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना से शुरू कर रहा हूं। आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय की बात है। महाकारुणिक बुद्ध सावथी में ठहरे हुए थे, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं। मोगलैन नाम का एक व्यक्ति बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर बुद्ध के पास आए और आकर के उन्होंने अपनी शंकाएं वहां रखी। बुद्ध ने उनका निराकरण किया। जब सारी शंकाओं का समाधान हो गया, तब अंत में मोगलैन ने कहा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं कि आप दुनिया के महान शास्त्र हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। आपके बराबर दुनिया में दूसरा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है। फिर भी आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हे तथागत, क्या कारण है कि कुछ ही लोगों का कल्याण हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ? बुद्ध ने मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। इससे पहले जो मैं पूछूं तुम उसका उत्तर दो। तथागत ने पूछा, मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं और अनेकों बार सावथी से राजगृह आया हूं, राजगृह से सावथी गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तो बुद्ध ने कहा, मोगलैन, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और वह तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे बताओ कि यहां से पूर्व दिशा में बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा कि पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? आप ही बताओ, क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। मोगलैन ने भी कहा कि तथागत, वो तो राजगृह नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध ने कहा, मोगलैन, उसी समय को दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी तुमसे ही राजगृह जाने का मार्ग पूछता है और तुम उसे भी वही मार्ग बताते हो जो पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति तुम्हारे बताई हुई दिशा में ही चले। तुमने पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा तो वो पूर्व दिशा में ही चले, तो वह तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। उसने कहा कि तथागत, वह तो निश्चित रूप से राजगृह पहुंचेगा। तब तथागत कहते हैं कि मोगलैन, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह जाना था,
और दोनों ने मार्ग भी तुमसे ही पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया, एक तो पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि दोनों में से एक ही पहुंचा? मोगलैन कहता कि तथागत, इसमें मैं क्या कर सकता था? मेरा काम तो उसे रास्ता बताना था, मैंने उसे बताया। चलने का काम तो उस व्यक्ति को ही करना था। जो ठीक चला वह मंजिल पर पहुंच गया और जो नहीं चला वह नहीं पहुंचा। तब बुद्ध कहते हैं, मोगलैन, तो इस बात को ध्यान से समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूं। मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बता देता हूं और जो मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, समझता है और ठीक से चलता है, वह मंजिल पर पहुंच जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो ठीक से सुनता नहीं, समझता नहीं और चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, 2500 वर्ष पहले बुद्ध और मोगलैन के बीच में जो संवाद हुआ, उसकी प्रासंगिकता मैं आज 2500 वर्ष के बाद देख रहा हूं। हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए। उन्होंने हमारी दुर्दशा को देखा, हमारे जीवन की दीनता, हीनता और मलिनता को देखा, हमारे ऊपर होने वाले अमानवीय जुल्मों को देखा, भूख से व्याकुल शारीरिक प्रताड़ना को सहन करते हुए हमें देखा। इंसानों की तरह पैदा तो हम हुए, लेकिन इंसानों की तरह जी करके हम नहीं देखते थे। पशुओं से भी बदतर हमारा जीवन था। इस हालात को बाबा साहब ने देखा। बाबा साहब इस दुनिया के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने अपने ज्ञान की पूरी साधना का इस्तेमाल, उन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान का उपयोग हम लोगों के कल्याण के लिए किया और हमें एक मार्ग बताया। जीवन की सभी समस्याओं के समाधान का एक मार्ग बताया और वो जीवन के अंतिम पड़ाव में ही बताया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब लाखों लोगों के साथ बुद्ध की शरण में गए और उसके बाद 15 अक्टूबर को जो उन्होंने इस देश के बौद्धों को संबोधित किया, उसमें बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध का मार्ग हमारे जीवन की सभी समस्याओं का मार्ग है। हम लोगों को क्या करना चाहिए था? हम लोगों को बाबा साहब में विश्वास करते हुए बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए था। आज मैं हैदराबाद में खड़ा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हैदराबाद का बहुत बड़ा योगदान है। यहां भी सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं, अच्छे अच्छे पद और प्रतिष्ठा पर बैठे हैं। बाबा साहब को भी मानते हैं, संबोधन में जय भीम भी बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को समझने में चूक कर देते हैं। 65 वर्ष के बाद क्या हमारे जीवन में वो समस्याएं रहनी चाहिए थी जो आज से 65 वर्ष पूर्व थी? 1956 से पहले जो हमारी समस्याएं थी, इन 65 वर्षों में उनका समाधान हो जाना चाहिए था। अगर हम ईमानदारी से बाबा साहब की बताई हुई बातों पर काम करते, अनुसरण करते, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता। लेकिन उस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम जय भीम भी कहते हैं, नमो बुद्धाय भी कहते हैं, लेकिन बीमारियों से प्रेम करते हैं। हम अपनी पहचान नहीं बना पाए। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा संशय हमारे सामने होता है। बुद्ध का धर्म
हमारे कल्याण के लिए है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, समय की प्रतिबद्धता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या जाति है। इस जाति व्यवस्था से भेदभाव हुआ, छोटे बड़े की बात हुई, शोषण उत्पीड़न भी हुआ। इस देश में जितने भी उत्पीड़न के केस हैं वो जाति के कारण हैं। इस देश में जितने भी शोषण के केसेस हैं वो जाति के कारण हैं। और इस देश में जितने भी सामूहिक नरसंहार हुए वो जाति के कारण हैं। और हम सफरर हैं, हम पीड़ित हैं। और जिस व्यवस्था में हमारा जन्म हुआ उस व्यवस्था में उसका कोई समाधान नहीं है। आप कितने भी योग्य हो जाएं, लेकिन जाति का दंश आपको जरूर लगेगा। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है देश में। बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन देश के मंदिर में नहीं जा सकते। और अगर बाबा साहब के बताने के 65 वर्ष के बाद भी ये बात हमारी समझ में नहीं आई तो हमसे ज्यादा नासमझ दुनिया में कौन हो सकता है। आईएएस से बड़ी इस देश में कोई पोस्ट नहीं है। आईएएस बनने के बाद भी, SC/ST आयोग का चेयरमैन बनने के बाद भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। तो समझ सकते हो एक कितनी बड़ी समस्या का समाधान बुद्ध के धम्म में था। और बाबा साहब ने हमें बताया कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए और आज नहीं जा पाए तो मैं समझता हूं जय भीम कहना स्टेटस की बात हो सकती है, गुमराह होने की बात हो सकती है, अनुयायी होने की बात कभी नहीं हो सकती। हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने, हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन सके, हम बाबा साहब के पैरोकार हो गए, बाबा साहब के वादी हो गए, बाबा साहब के पक्ष में बात करने वाले हैं, लेकिन बाबा साहब की बात मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें बुद्ध की शरण में जाकर के जाति को तोड़ना चाहिए था। जब हम बौद्ध बन जाते हैं तो जाति टूट जाती है, और जाति टूट जाती तो हमारे बीच का भेद खत्म हो जाता। कौन माला है कौन मादिका है ये सवाल नहीं उठता। लेकिन आज भी तेलंगाना में माला और मादिका का सवाल है, हरियाणा में किन्हीं और जातियों का सवाल है, महाराष्ट्र में किसी और जातियों का सवाल है। बाबा साहब समाधान देके गए और हम उस पर काम नहीं कर पाए। बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान होनी चाहिए थी, हमारा पहनावा बदलना चाहिए था। हम श्वेत वस्त्र पहनने वाले होते, देखते लोग पहचान जाते ये बौद्ध हैं। महिलाओं को भी बौद्ध बन करके पुरानी व्यवस्था के सारे प्रतीक उतारने चाहिए थे। लेकिन हमारी पहचान क्या है? बाबा साहब को नहीं समझते थे तब भी चूड़ियां पहनती थी महिलाएं, आज भी चूड़ियां पहनती हैं। कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक बन गई, इससे बड़ी अज्ञानता कोई हो सकती है? डिग्रियां कितनी भी ले ली हो, डॉक्टर इंजीनियर बन गए हो, IAS IPS बन गए हो, हाथ की चूड़ी उतारने का साहस समाज में आज भी नहीं आया है। और चूड़ियां गुलामी का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक है। ये छोटी छोटी बातें ही समझ में नहीं आई तो व्यवस्था निर्माण की बात कब शुरू होगी? महिलाओं को भी अपनी आजादी के लिए सारे प्रतीकों को उतारना चाहिए था। मांग के सिंदूर से लेकर के पैर की बिछिया तक उतार लेनी चाहिए थी। पहनावा बदलना चाहिए था, हमारे प्रतीक बदल जाने चाहिए थे, हमारी मान्यताएं बदल जानी चाहिए थी, घर घर में वंदना होनी चाहिए थी, हमारे त्योहार बदलने चाहिए थे, केवल बौद्ध परंपराएं होनी चाहिए थी, बौद्ध उत्सव होने चाहिए थे, पैदा होने से लेकर के मरने तक सारे संस्कार बदलने चाहिए थे। ये सारी चीजें बदल जाती तब हम बौद्ध कहलाते। हमारी पहचान बौद्ध के रूप में होती, त्रिशण पंचशील मानने वाले होते, शीलवान बन जाते, प्रज्ञा के साथ शील की बात करते तो हम श्रेष्ठ लोग कहलाते।
आज हम दलित कहलाते हैं, शोषित कहलाते हैं, पीड़ित कहलाते हैं। इतने ज्ञान की धरोहर के वारिस बनने के बाद जिस समाज के आइकॉन बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व रहे हों, जिन्होंने दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, जिनके शास्त्रा बुद्ध रहे हों, उनके अनुयायी दलित कहलाएं, शोषित कहलाएं, पीड़ित कहलाएं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करते हुए अपनी पहचान को स्थापित करना चाहिए। और बौद्ध लोग कैसे होते हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनकी संबोधन कैसे होने चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनके उत्सव कैसे होने चाहिए, इन सब चीजों को समझ करके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए था। ऐसा होता तो क्या होता है, हमारी गरीबी खत्म हो जाती। आज आप खूब पैसा कमाते हैं, पैसा घर में आने के बाद खरीदारी कहां से करते हैं? जहां से खरीदारी करते हैं वही तो शोषण करने वाला है, वही तो उत्पीड़न करने वाला है, वही तो नीतियां बना करके हमें नीचे गिराने वाला है। अगर यह बात हमारी समझ में आ जाती, जो हम कमाते हैं उस पैसे से अपने ही भाई से खरीदारी करने लग जाते, तो मुनाफा उसके घर में जाता, और उसके घर में जाता तो वो हमारे बराबर खड़ा हो जाता, और वो हमारा उत्पीड़न नहीं, हमारे विकास में सहायक बन जाता है। जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, वो अपने घर में सामान बनाते, अपने पड़ोसी को बेचते, और हम इसलिए खरीदते कि वो जय भीम वाला है, वो नमो बुद्धाय वाला है, वो बाबा साहब को मानने वाला है, वो बुद्ध को मानने वाला है। और ये छोटी सी एक बात समाज निर्माण में एक मील का पत्थर बन जाती, और हम आर्थिक रूप से समाज को सशक्त कर पाते, मजबूत कर पाते। बड़े बड़े उद्योग स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन छोटे छोटे काम से हम अपने समाज को जोड़ने का काम करते हैं। बिना आर्थिक व्यवस्था के, बिना अपने भाइयों के सहयोग करने के हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आज भी हम जातिगत मानसिकता को लेकर के समाज को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम मनुवाद के शिकार हम खुद हैं। लड़ाई किससे लड़ेंगे? इसलिए क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, मैंने पहले भी कहा था, हमें बौद्ध बन करके अपनी व्यवस्था के निर्माण में आर्थिक आधार को मजबूती से समझना चाहिए, और समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के लिए प्रेरित करते हुए उनसे सामान खरीदना चाहिए, जाति को नकारना चाहिए। जब बुद्ध पूर्णिमा आए तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो समाज की ताकत नजर आएगी। जब एक साथ बैठ करके उपोषित करेंगे तो समाज की ताकत नजर आएगी। एक संबोधन के साथ जब बाहर निकलेंगे तो समाज की ताकत नजर आएगी। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है समाज को मजबूत बनाना है। अरे बहुत आसान है, बस छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूं। कितना आसान है, इस सारी समस्या का समाधान बहुत थोड़ा सा है। जैसे पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, पहले नाले निकलते हैं, किसी नाले का नाम नहीं होता। छोटे छोटे नाले मिलते हैं तो बड़ा नाला बन जाते हैं, और जब बड़े बड़े नाले मिलते हैं नदी बन जाती है। और नदी का एक नाम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब। यहां भी बहुत सारी नदियां होंगी। नदी कितना भी दूर चले, सैकड़ों मील की दूरी तय करे, नदी का वही नाम रहता है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है, और वो नदी समुद्र हो जाती है। जो ही नदी समुद्र में जाती है, उसका नाम और पहचान खत्म हो जाता है, वो समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां जब समुद्र में चली जाती हैं, बाबा साहब कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता कि किस नदी का कौन सा पानी है? नहीं बता सकता। ऐसा हमारा बौद्ध धर्म है, ठीक समुद्र की तरह। किसी भी जाति, गोत्र, वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जब बुद्ध की शरण में जाता है तो उसका नाम और पहचान खत्म हो जाती है, और वो बौद्ध बन जाता है। और बौद्ध बन जाता तो भेद खत्म हो जाता है। सारे बौद्ध एक जैसे नजर आते हैं, एक मान्यता के, एक परंपरा के, एक संस्कार के, और ये बहुत मजबूत बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने का साधन बन जाता है।
तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो इस बात को समझें कि हमें बाबा साहब का अनुसरण करना है और अनुसरण करते हुए बौद्ध बनना है और बौद्ध भी सच्चे बौद्ध बनना है और सच्चे बौद्ध बनकर के समाज को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और विशेष रूप से एनलाइटन वर्ल्ड को, जिन्होंने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, मुझे भी यहाँ बोलने का अवसर दिया, इस सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.